I'm working as senior registrar in the Department of Surgery, Surgical Unit, Civil Hospital. The topic of my tutorial presentation today is Introduction to Perioperative Care. As you guys are third year, so this is somewhat a new thing for you. But perioperative care means that it is a term that used to describe the entire span of surgery, right from the patient enters in our OPD and we start assessing and diagnosing his or her case, and then we go for some investigations, and then some pre-operative anesthetic fitness workup, and then we go for surgery until after that patient recovers and goes home. This entire span of time is termed as perioperative care. Okay, we divide into three basic groups. पहले में ये कि pre-operative care, peri and pre में difference है. Peri is the entire time period. Pre means pre-operative, then intra-operative, and then post-operative. Okay. Understanding the principles of pre and post-operative care is critical in ensuring the high quality outcomes in surgical patients, because we have different surgical patients. Some are young without any comorbids, without any illnesses, and some are old or middle-aged who have other diseases despite the surgical conditions. So everyone has different type of body, different type of diagnosis, different type of pre-operative condition, and different post-operative recovery. Varies from patient to patient, okay? Because it depends on the set of risk factors and comorbids. Okay. So in addition to the risk of surgery and anesthesia to all patients, some people raise hand. If you want to ask any questions, you can ask in the end of the session. Every procedure that a surgeon performs carries its own set of specific management issues and potential complications. What is pre-operative evaluation? Pre-operative evaluation means it starts from the history. As I said earlier, patient enters in your OPD and you start asking about his or her illness. It starts right from there. So we are now in the first part, pre-operative evaluation, pre-operative history and clinical assessment. Means patient enters in your OPD in your clinic and he tells you his symptoms. You take the relevant history, and clinical assessment means the relevant examination. Examination, we'll come later on to that. And in this way, you are able to identify the problem, 60% problem of the patient with your history and examination. At your level, the best thing you should have a grip on is history, proper history and examination. Because आप diagnosis पे 60-70% पहुंच जाते हैं with your history and examination. Besides, you ask risk factors, the patient risk factors भी history में आप evaluate कर लेते हैं, ठीक है? After that, you need some confirmation of your diagnosis. So you go for pre-operative lab test. Then these lab tests depends on your blood testing, your imaging, right? Your cardiology status. We don't go for it in every patient. The cardiology, these depend on the risk factors, like patient who are high risk, who are hypertensive, uncontrolled hypertension, ischemic heart disease. And those we go for further advanced investigation. Then you have to be judicious in use of antibiotics. You cannot use over the counter in every patient. You have to see whether he or she needs or not. Okay. Then the important thing is DVT prophylaxis. What do we mean by DVT? It is deep venous thrombosis. Okay. So we'll come to this later on, inshallah, in detail. I'm just telling you outline here, and then checklist what we have done till now and what should be done pre-operatively in order to be sure that patient is 100% risk. So DVT prophylaxis and then checklist should be performed pre-operatively. The pre-operative checklist is given to every hospital surgical department
and in what setups when you will be used to of doing your clinical attachments. You will see that in your file, in patient's file, the checklist is attached. Okay, so you have to just jot it down that you have done everything correctly. Now we have pre-operative history and examination. First, I just told you the outline of pre-operative evaluation, and the first thing after evaluation we'll be discussing is history and examination. Can everyone see my screen? Okay, now pre-operative history and examination. So is everyone able to see my screen? Okay, so the relevant history which we take pre-operatively in patient is particular to the surgical condition, which we have to ask patient in detail. Like if patient is having abdominal pain, you have to take a relevant history of abdominal pain, which we'll be discussing in your clinical tutorial, the history of abdominal pain, which is in entire different topic. So I'm not going into the detail, I'm just giving an example that abdominal pain is a surgical condition. You have to take a relevant history, vomiting, absolute constipation. Okay, so these are the symptoms for which you have to take the relevant history, and then you have to take the relevant past medical history. Past history of hospitalization, past history of surgery, past history of blood transfusion. Why it is important? Because surgery has its own risk, and if the patient has undergone the previous hospitalization, surgery, and he has undergone general anesthesia or regional anesthesia, so you should know that he recovered well previously and he doesn't have further risks now, in order to just clear that thing. Then you ask for drug history. For instance, multiple patients are diabetic. You will see so many patients with abscesses and carbuncles come in your OPD with diabetic foot, with abscesses, with cellulitis, with other surgical conditions. So you have to ask them that are they taking oral hypoglycemics, and the diabetes and hypertension go hand in hand. So you have to rule out whether they are only diabetic or they take any antihypertensive medication as well. Then the history of blood thinners, because you have to stop blood thinners for a certain period of time before surgery because they induce the tendency to bleed, right? Then any use of recreational drugs. अब क्या करूँ मैं? ऐसे करूँ? फिर क्या इशू है? यहाँ से मोबाइल से कनेक्ट ब्राउज़र से भी हो जाता है। जी जी, ये मेरे पास वो है। 975 3844 सही हो गया। 384490। तो उनको तो कुछ समझ नहीं आएगा इतना जो Dali, working as senior registrar consultant surgical unit to civil hospital. So topic for today's tutorial is introduction to peri-operative care. ठीक है, अब समझ आ रहा सबको? अच्छा, what do we stand for peri-operative? Peri-operative is in the entire span of your surgery, right from the patient enters in your clinic and you start assessing the patient, and then you reach up to the diagnosis,
do some investigations, go for pre-operative anesthesia, fitness workup, and then surgery. And then after that, the patient landed up in your ward and goes home safely. ये पूरा जो सारा है, that is called a peri-operative care. ठीक है? So इसमें each and entire step is important. You have to understand the principles of pre and post-op care. क्योंकि you have to assess the outcome in surgical patient, and that should be high quality. The quality of your care, the quality of your surgery, and everything. Okay. So each patient is different from one another. Everyone has their own risk factors. Some are young people, don't have any other risk factors. Some are middle-aged and old, suffer from different diseases. So उस पर depend करता है कि आपका patient vary करेगा हर एक दूसरे से, ठीक है? And दूसरी बात ये है कि in addition to risk of surgery, anesthesia is common to all patients. Mostly हम general anesthesia या spinal anesthesia देते हैं, जिसको हम regional anesthesia भी कहते हैं. तो उन सब के अपने pros and cons होते हैं. So you have to be aware of these things. Okay. आगे हम शुरू कर रहे हैं प्री ऑपरेटिव इवेल्युएशन से. अब देखो पेरी था, पेरी वाज द एंटायर स्कैन. अब दिस इज प्री. पेरी ऑपरेटिव केयर इज डिवाइडेड इनटू बेसिकली 3 पार्ट्स. पहला पार्ट क्या है? प्री ऑपरेटिव इवेल्युएशन. the second is the intra-op, and the third one is post-op. ज्यादातर हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं प्री-op, because at your level you should know how to diagnose the surgical conditions, how to do a proper examination, how to reach up to the diagnosis with the help of investigations, and how to prepare patients. This is all called pre-operative evaluation. उसके बाद intra-op आता है. Intra-op भी आपके लिए important है. Each and every step is important for you, but you have to concentrate more on the pre-operative. So the major part of my topic will cover this. Okay. लेकिन हमने सभी कुछ कवर किया. तो प्री ऑपरेटिव इवैल्यूएशन में सबसे पहले हमारे पास हिस्ट्री एंड क्लिनिकल असेसमेंट आती है. हिस्ट्री का क्या मतलब है कि patient comes to you in your clinic and you start taking a proper history and you start asking the relevant questions from the patient. That question that what are his and her symptoms, since when they are, and you have to reach up to the diagnosis of the surgical condition. Like किसी को abdominal pain है, तो abdominal pain is a broad term. वो एक पूरा entire different topic है जो आपका cover होगा अलग से. मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दे रही हूँ, ठीक है? फिर उसके आपने evaluate करके आपने उसको differentials मिलाना हो, तो फिर confirm diagnosis बनानी होती है. And let me tell you, the 60% of your diagnosis comes out with your history and proper examination. तो पहली चीज हो गई प्री ऑपरेटिव हिस्ट्री. उसके बाद क्लिनिकल असेसमेंट मींस एग्जामिनेशन. एग्जामिनेशन इज रेलेवेंट. फर्स्टली पहले जर्नल फिजिकल हम करते हैं पेशेंट का, फिर उसके बाद हम रेलेवेंट टू द सर्जिकल एग्जामिनेशन करते हैं, फिर हम रिस्क फैक्टर्स, यानी कि अगर किसी को क्लिनिकल असेसमेंट का मतलब है जर्नल फिजिकल एग्जामिनेशन लेंगे फ्रॉम हेड टू टो कि कोई एब्नॉर्मलिटी तो नहीं, एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स. This you will learn in medicine also, क्योंकि journal physical is common to every field. ठीक है? head to toe जो भी examination है patient. फिर relevant to the surgery. अब जैसे किसी का हाथ में abscess बना हुआ है तो उसकी clinical examination होगी. किसी का abdomen में hernia है, inguinal hernia है, incisional hernia है, paraumbilical hernia, उसकी relevant examination होगी. You will learn all these step by step. Okay? और वार्ड में जब क्लिनिकल राउंड्स होते थे तो स्टूडेंट्स को यही चीजों पे कॉन्सेंट्रेट किया जाता है. ठीक, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के साथ रेलेवेंट एग्जामिनेशन, एंड देन रेलेवेंट टू दी कोमॉर्ब्स या रिस्क फैक्टर्स. जैसे कोई कार्डियक पेशेंट है तो उसको आप देखेंगे कि उसके चेस्ट में फाइंडिंग्स मिलेंगी आपको, या उसकी कार्डियक एग्जामिनेशन में आपको फाइंडिंग्स मिलेंगी ऑस्कल्टेशन पे, या उनको पीडल एडीमा मिलेगा. ठीक है, फुट एडीमा जो होता है. तो ये चीजें रेलेवेंट टू दी कोमॉर्ब्स. इसके बाद आ जाती है प्री ऑपरेटिव लैब टेस्टिंग. प्री ऑपरेटिव लैब टेस्टिंग होती है, उसमें आपको ब्लड इन्वेस्टिगेशन होती है सबसे पहले, फिर उसके बाद इमेजिंग होती है. देखिए 60% आपका काम हो गया हिस्ट्री एग्जामिनेशन. देन यू गो फॉर प्री ऑपरेटिव लैब टेस्ट. उसमें ब्लड टेस्ट आ गए सबसे पहले, व्हिच आर द बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस. ये भी हम आगे डिस्कस करने लगे इंशाल्लाह. देन योर इमेजिंग एंड योर ईसीजी, एवरीथिंग. ओके, सो ये देखना होता है. इसके बाद हम जो प्री ऑपरेटिव लैब टेस्टिंग अलग से एक चीज है, एक चीज है डायग्नोस्टिक टेस्टिंग.
यानी किसी को अगर फर्स्ट करो जॉन्डिस है बहुत ज्यादा, ठीक, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, यू हैव टू रीच अप टू द डायग्नोसिस। अब अगर यंग पेशेंट है उसमें तो गॉल स्टोन्स होंगे या गॉल स्टोन स्लिप होके कॉमन बाइल डक्ट में चला गया तो वो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का है। कोई ओल्ड पेशेंट है जिसको प्रोलॉन्ग और प्रोग्रेसिव जॉन्डिस है, यू हैव टू गो फॉर सीटी स्कैन एब्डोमेन, तो वो एक एडवांस इन्वेस्टिगेशन है। फिर अगर उसी पेशेंट में कोई कोमॉर्बिड डायबिटीज हाइपरटेंशन, सो यू हैव टू गो फॉर दोज रिलेवेंट टेस्ट एज वेल, ठीक है। तो ये सारा लैब टेस्टिंग हो गया। फिर उसके बाद रैशनल एंड जुडिशियल यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। देखो एंटीबायोटिक्स ओवर द काउंटर इफ यू यूज देम they have more harm than good, okay? So you have to assess in which patient there is indication of antibiotics, ठीक। हर पेशेंट में यूज नहीं करनी, क्लीन सर्जरीज में यूज नहीं करनी होती, you have to keep it for the clean contaminated and contaminated cases। क्योंकि आजकल आप देखेंगे अगर you to talk with some infectious disease doctors, they will tell you how our nation and how people are developing the resistant diseases, like अभी पिछले दिनों सुना होगा resistant typhoid आता है, क्यों? Because of using over the counter so much antibiotics। तो वो बैक्टीरिया जो उसके against mutant strains बना लेते हैं and then you become resistant, your infection in the body is not treated well, इसलिए you have to be judicial in the use of antibiotics। उसके बाद DVT prophylaxis, what do we mean by DVT? It's deep venous thrombosis, ठीक है, तो उसका भी प्रोफाइलैक्सिस देना है। और उसके बाद प्री ऑपरेटिव चेकलिस्ट, ये हर हॉस्पिटल में हर वार्ड में दी जाती है। एंड ऑन कॉल ऑन फ्लोर जूनियर डॉक्टर्स एंड सीनियर डॉक्टर्स आर सपोज्ड टू complete that checklist, that they have not missed anything in order to ensure the proper secure safety of the patient before and after surgery, ठीक है। जैसे कि प्री ऑपरेटिव चेकलिस्ट में होता है कि नील बाय माउथ कब से है, ठीक है, ये आगे हम डिस्कस करेंगे, कितना करना है, एरिया शेव करना है नहीं करना, प्री ऑप एंटीबायोटिक देनी है नहीं देनी, ब्लड लगाना है नहीं लगाना, ये सब चीजें उसके अंदर इंक्लूडेड होती है, ठीक है। एंजियोलाइटिक्स वगैरह जो भी हम देते हैं, आगे आ जाते हैं। फिर इसके बाद आगे हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन, मैंने बता दिया उसमें आप रेलेवेंट टू जो द सर्जिकल कंप्लेन हिस्ट्री लेते हैं। उसके बाद पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, क्योंकि पेशेंट ज्यादातर जो आपके पास आते हैं मिडिल एज और ओल्ड एज, सर्जरी रिलेटेड हिस्ट्री प्रॉब्लम्स के अलावा उनको आपको पूछना जरूरी है व्हेन दे वर एडमिटेड इन द पास्ट, दिस इज पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, आर दे हैविंग एनी मेडिकल कंप्लेंट्स from years or from months whatsoever, did they undergo any kind of anesthesia and surgery earlier in hospitalization for whatever the reason, you have to write it down in your history and you have to tell। अब तो क्योंकि ऑनलाइन हो रहा है, when we used to conduct clinical teaching in our ward rounds, the student used to describe the histories which he used to take, तो उसमें यही चीजें यही पॉइंट्स होते थे, and you have to make sure these points should not be missed because exam में examiner expect कि आपको आता है, not only for the exam, you have to be a good physician in order to get that, you have to have a command on good history, ठीक है। तो past medical history, hospitalization history, anesthesia and surgical history, then drug history, past transfusion history, जैसे बहुत सारी खवातीन हैं उनको किसी मेडिकल रीजन की वजह से नहीं, लेकिन सिजेरियन होता है, बेबी होता है, बर्थ होती है, उसमें उनको ट्रांसफ्यूज होता है। ड्रग हिस्ट्री इज इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ द कोमॉर्ब्स, पेशेंट कम टू यू हैव डायबिटीज, हैव हाइपरटेंशन, हैव ischemic heart disease, have valvular heart disease, so you have to ask about anti-diabetic medications, antihypertensive, blood thinners, aspirin, warfarin, okay, so ये सब इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा कोई पास्ट हिस्ट्री, यानी देखो किसी में सर्जिकल केसेस होते हैं पहले से मौजूद होते हैं, जैसे किसी को ट्यूबरकुलोसिस थी पहले पल्मोनरी, तो उसके लिए उसने एटीटी ली नहीं ली, ये भी इम्पोर्टेंट है पूछना। बाद में क्योंकि टीबी डिसेमिनेट्स इन द बॉडी, इट कैन बिकम मिलियरी टीबी, इट कैन प्रेजेंट इन द एब्डोमेन, तो फिर आपको क्लू मिल जाएगा इट इज अ डिसेमिनेटेड टीबी, पहले पेशेंट को एब्डोमेन पल्मोनरी कॉक्स हो चुका है, ठीक है। देन यूज ऑफ रिक्रिएशनल ड्रग्स लाइक any kind of nasha, okay, you have to ask do you use any drugs which cause addiction, smoking, anything, ठीक है, smoking, alcohol, cocaine, niswar especially not, can we stop for a while because of azan if you don't mind, okay.
भाई मेरी आवाज आ रही है? हाँ उनको तो डिस्कनेक्ट किया ताकि तो मेरी तो जा ही नहीं रही थी। ये तो मेरा जूम की वीडियो विंडो कहाँ है? ये आ रही तो जा उसको बड़ा कर इसीलिए मैंने आई थी। और अच्छा स्क्रीन नजर आ रही है? चलें गुड। तो अच्छा अब हम सही। अच्छा अब हम जो है जल्दी जल्दी कवर करते हैं क्योंकि काफी सारा टाइम हमारा ये टेक्निकल इश्यूज की वजह से ऑलरेडी जाया। ठीक, तो यहाँ तक बात समझ आ गई कि रिक्रिएशनल ड्रग्स के बारे में पूछेंगे हम लोग। ठीक, उसके बाद एलर्जीज, क्योंकि पीपल हैव एलर्जीज टू सर्टेन ड्रग्स। डस्ट एलर्जी वगैरह इज नॉट अ बिग इशू, मगर ड्रग एलर्जीज पूछना बहुत जरूरी है। फूड एलर्जी पूछना बहुत जरूरी है। ठीक है, सम हैव एलर्जी फ्रॉम एग एंड seafood etc. and then risk factors for DVT. Risk factors for DVT अभी मैं बताऊंगी तो फायदा नहीं because they are coming in the upcoming slides. बस ये पूछना होता है risk factors for DVT में। एक तो एज होती है about 60-65, pregnancy है because it is a hypercoagulable state, if patient is using any oral contraceptive, female patient, okay, smoking है, bed bound होना है, immobility, ये सारे risk factors for DVT. So you have to rule out all these. ये इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास आएगा। अगर किसी को कैंसर या कोई morbid illness है वो भी risk factor होता है DVT। ठीक, समझ आ रहा है तो प्लीज चैट में मुझे बताओ और स्क्रीन नजर आ रही है तो। ठीक, नेक्स्ट एग्जामिनेशन हमारे पास है कि मैंने बता दिया कि आपको देखना है सबसे पहले जर्नल फिजिकल एंड देन डिजीज रिलेटेड एंड देन केयरफुल अटेंशन शुड बी पेड टू द कोमॉर्ब्स दैट मे अफेक्ट सर्जिकल रिस्क एंड रिक्वायर एडिशनल प्री ऑप प्रोग्राम। इसमें देखें हेडिंग्स, ये सारे बेलियन लव के चार्ट्स हैं। अच्छा ये बहरहाल, अच्छा एग्जामिनेशन, ये स्लाइड्स जो हैं सारी ये जो इनके लेक्चर में जो समरी बॉक्सेस हैं दीज आर फ्रॉम बेलियन लव, सो यू कैन आल्सो गो थ्रू फ्रॉम द चैप्टर पेरिये ऑपरेटिव वर्कअप इन द बेलियन लव 27th एडिशन। ठीक है, सो जर्नल पॉजिटिव फाइंडिंग्स देखनी है सारी उसमें जो मैंने हेड टू टो बताया। सर्जरी रिलेटेड, कहाँ का सिम्टम है, कौन सी सर्जरी रिक्वायर्ड होगी इस पेशेंट को, और उसकी अंडरलाइन पैथोलॉजी, उसकी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन, जैसे किसी को पेशेंट को सिंपल पैराअम्बिलिकल हर्निया है, अब दैट वाज लॉन्ग स्टैंडिंग हर्निया that has become large in size and that has caused skin excoriation, so that was the complication of the surgery related thing। ठीक है, तो ये उसमें आपको बताना। देन सिस्टमिक में कोमॉर्ब्स देखनी है, मैंने पहले एग्जांपल दिया। ठीक, और आपको सारे ही सिस्टम्स कवर करने होते हैं हेड टू टो, सब कुछ ही देखना होता है उसमें। ठीक है, आगे आपके पास इन्वेस्टिगेशंस आ जाती हैं। जो यंग एंड फिट पेशेंट्स होते हैं दे यूजुअली डोंट रिक्वायर एनी माइनर सर्जरी फॉर एनी इन्वेस्टिगेशन फॉर एनी माइनर सर्जरी इन प्री ऑपरेटिव पीरियड। मेजर सर्जरी के लिए बेशक मिडिल एजेड हो, यंग हो और एल्डरली हो, यू हैव टू गो फॉर सम स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस। CBC आप तकरीबन हर पेशेंट्स में करते हैं बिकॉज वी डोंट नो इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड patient present with the surgical related problem, they have underlying anemia. So in order to look for the hemoglobin and any thrombotic disorder जैसे हेमोफीलिया वगैरह, तो आपको ये सब करना होता है। ठीक है, देखना होता है। उसके बाद renal function studies. Renal function studies is not indicated in young patients. It is indicated in hypertensive patients, diabetic patients, or patients who are taking some drugs that cause nephrotoxicity. ठीक है, ये आपको हिस्ट्री से पता लग जाएगा। उसके बाद RBS एंड HbA1c हम सब पेशेंट्स में कराते हैं क्योंकि वी हैव यंग पॉपुलेशन विद टाइप 1 डायबिटीज।
So in order to rule out that, you have to go for RBC, RBS and HbA1c. Clotting stream क्या होती है? PT, APTT, INR. PT prothrombotic time, activated partial thromboplastin time, and INR international normalized ratio. ये आप हर पेशेंट्स में नहीं करवाते unless you have a patient with end stage liver disease, cirrhosis, hep C positive patients, ठीक है, और ऐसे पेशेंट्स जो एंटीकोगुलेंट मेडिकेशन यूज करते हैं लाइक वार्फेरिन, उनमें आपको क्लॉटिंग स्ट्रीम देखनी होती है इन ऑर्डर टू सी के उनको कोई उनका INR और PT जो है नॉर्मल है, क्योंकि 1.5 is the cutoff to go for surgery. Beyond that, you have to normalize that. You have to make it normal before going for surgery. वरना patient bleed जाता है. Urinalysis आप सारे patients में कराते हैं, उसकी significance क्या है? You can see glucose urea, to rule out diabetes. Bilirubin urea, कोई underlying jaundice है वो नजर आ जाता है, ठीक है. Protein urea, कोई kidney disorder है वो उसमें आ जाती है. LFTs is indicated for patients. In our case surgery related, उसमें आपको करवाना ही होता है LFTs, क्योंकि अगर कोलिलिथियासिस का पेशेंट है, कोलिसिस्टाइटिस का पेशेंट है, कोलिडोकोलिथियासिस का पेशेंट है, पैंक्रेटाइटिस का पेशेंट है, सब में LFTs करवाते हैं, ठीक. चेस्ट एक्सरे, अगर कोई स्मोकर है, ठीक है, और हिस्ट्री दे रहा है मैं स्मोकिंग करता हूँ इतना अर्से से, कोई एडिक्शन की हिस्ट्री है उसकी, और कोई पेशेंट है जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और कॉफ नॉन इंटरमिटेंट कॉफ वगैरह बता रहे हैं, आपको गो फॉर चेस्ट एक्सरे. ECG, बेसलाइन ECG हम हर पेशेंट में नहीं करवाते unless we know the risk factor in that patient, ठीक. Besides, due to high prevalence of HB and HIV, this is done in all patients. In our part of the world, Pakistan में ज़्यादातर hospitals में हम ये जरूर करवाते हैं because we don't know what was the previous status, ठीक है. Because this is a transmittable disease, so in order to ensure कि आप दूसरों को transmit ना करें, you go for that testing, and if someone comes positive, उनके अलग से sets होते हैं, अलग से चीजें होती हैं, ठीक. Assessment of high risk patients, as I told earlier कि हमें patient to patient vary करता है. Young patients में आपको ज़्यादा workup नहीं कराते, but in high risk patient you have to rule out each and everything, ठीक है. So patients who have a predictive mortality of greater than 5% should be considered as high risk. Risk factors are patient and surgery related. The elderly are at higher risk, क्योंकि they not only suffer from cardiac, pulmonary and renal diseases, but also require surgery 4 times as often as the rest of the population. Surgery का जो impact होता है वो risk factor जिस पे वो independent है, especially if the surgery is performed on emergent basis, ठीक है. So आपको underlying conditions जो है वो सारी rule out करनी होती हैं और देखना होता है कि how safe it will be, ठीक है. आगे आ जाते हैं पेशेंट फैक्टर्स. इसमें मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाती, मैं बता देती हूँ आपको, ठीक है. अच्छा, आपको ये देखना है कि किसी को कोई कार्डियो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, जैसे मैंने बता दिया, इस्केमिक हार्ट डिजीज है, पहले किसी को MI हो चुका है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, COPD है, स्ट्रोक हो चुका है, एज, जितनी ज्यादा एज होगी उतने ज्यादा रिस्क फैक्टर होगा, ठीक है. अगर कार्सिनोमा है पेशेंट को और यू हैव टू प्लान अ एक्सटेंसिव सर्जरी, दैट इज अ पेशेंट रिस्क फैक्टर, ठीक है. प्लस पेशेंट अगर मैलनरिश्ड, एल्बुमिन कम है, ठीक है, हीमोडायनामिकली अनस्टेबल है, मींस ये कि सेप्सिस में, सेप्सिस का मतलब होता है पेशेंट की बॉडी में जो पस बनी हुई पेरिटोनाइटिस की वजह से, उसकी वजह से पेशेंट की जो मल्टीपल ऑर्गन्स हैं, किडनीज, लंग्स, ये सारे फेल होना शुरू हो गए. सो ये हीमोडायनामिक इंस्टेबिलिटी करवाएगा, ठीक है. ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो गया, सेप्सिस और सेप्टिसीमिया मैंने अभी बता दी, ठीक है. रेस्पिरेटरी फेलियर है, रीनल फेलियर, ये चीजें देखनी पड़ती है, पेशेंट फैक्टर्स हैं, ठीक है. इसके बाद सर्जरी स्पेसिफिक. अच्छा, हाई रिस्क, इंटरमीडिएट रिस्क, लो रिस्क. इसका मतलब ये है कि हाई रिस्क का मतलब है हाई कार्डियक रिस्क, इंटरमीडिएट का मतलब है इंटरमीडिएट 1 to 5% एंड देन लेस देन 1%. अगर आप मेजर वेस्कुलर सर्जरी करेंगे, जैसे ओपन एओर्टिक एन्यूरिज्म रिपेयर, मेजर वेस्कुलर रिपेयर, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज, या आप अर्जेंट लेप्रोटमी करेंगे, उसमें हाई कार्डियक रिस्क है, स्पेशली अगर पेशेंट पहले से कोमॉक्स के साथ और सेप्सिस हो. अगर आप कोई ऐसी सर्जरी कर रहे हैं जो वेस्कुलर है, जैसे इलेक्टिव एब्डोमिनल एओर्टिक और कैरोटिड सर्जरीज कर रहे हैं, कैरोटिड एंडोवेस्कुलर एन्यूरिज्म्स कर रहे हैं, हेड एंड नेक सर्जरीज कर रहे हैं, तो ये इनमें रिस्क इंटरमीडिएट है. अच्छा, जो ब्रेस्ट सर्जरी कैंसर के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए डेंटल, थायराइड,
गायनेकोलॉजिकल या प्लास्टिक सर्जरी, उसमें इतना रिस्क नहीं होता। तो ज्यादातर आपके पास जो एब्डोमिनल सर्जरीज आते हैं ऑन इलेक्टिव बेसिस, एब्डोमिनल कैंसर सर्जरीज, माइल्ड सिस्टमिक डिजीज, नो फंक्शनल लिमिटेशन, जैसे कि किसी को माइल्ड हाइपरटेंशन है 140 145 की रेंज में और पेशेंट प्रॉपरली अपनी नॉर्मल डेली रूटीन एक्टिविटीज कर रहे हैं, यानी नो फंक्शनल लिमिटेशन, तो ए से 2 है। ठीक है, एग्जांपल के साथ बता रही हूँ। 3 सिवियर सिस्टमिक डिजीज, डेफिनेट फंक्शनल लिमिटेशन, जैसे किसी को सीओपीडी है या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, definite functional limitation, patient is not able to carry out the daily functional activities या go on job, shortness of breath होना शुरू हो जाती है, पेशेंट को बैठना पड़ता है, तो ये सिवियर या अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है। ठीक है, तो सिवियर सिस्टमिक डिजीज है। अच्छा, अब 4 सिवियर सिस्टमिक डिजीज, दैट इज अ कांस्टेंट थ्रेट टू लाइफ। अब वही सारी ऊपर वाली डिजीजेस हैं, लेकिन वो अब मेडिकेशंस पे भी कंट्रोल नहीं हो रही है, पेशेंट इज एट रिस्क ऑफ हिज और हर लाइफ। जैसे कि किसी को इतना ज्यादा कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर है कि उसका इजेक्शन फ्रैक्शन हार्ट का ही 25%, हार्ट इज 25% वर्किंग, दिस इज अ कांस्टेंट थ्रेट टू लाइफ। ठीक है, अच्छा, अगर उसके साथ कैंसर हो जाए, फर्स्ट करो कैंसर के पेशेंट में ऐसा हो तो वो भी ए से 4 ही हो। अच्छा, 5 मॉरिबंड पेशेंट अनलाइकली टू सर्वाइव 24 आवर्स विदाउट सर्जरी, पेशेंट को इतनी एक्सटेंसिव इलनेस है, इतना severe type of carcinoma या कोई और illness है, you whether you do surgery or do not do anything, it is A से 5। ठीक, अच्छा, इसमें ओबेसिटी भी आ जाता है, जैसे माइल्ड में तो ओवरवेट है, सिवियर में ओबेसिटी आ जाती है, क्योंकि वो भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में आता है। ठीक, अच्छा, इमरजेंसी में हम हमेशा ए से ई लेते हैं। ठीक है, एवरीबॉडी गेटिंग इट, प्लीज बताइएगा मुझे। अच्छा, इसके बाद आ जाता है कार्डियक रिस्क इवैल्यूएशन। Cardiac risk evaluation, these are the most common most common complications that lead to mortality and morbidity. Increased risk is seen in coronary artery stenosis. अच्छा, तो सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस में अगर कोई पेशेंट किसी को पोस्ट ऑपरेटिवली या पोस्ट सर्जिकल कोई कॉम्प्लिकेशन सबसे ज्यादा हो सकती है, दैट आर कार्डियक कॉजेज, दैट आर लीडिंग कॉजेज ऑफ मोर्टेलिटी एंड मोर्बिडिटी। Increased risk is seen in coronary artery and recent advance, systemic hypertension, aortic stenosis, peripheral artery disease, diabetes mellitus. अच्छा, अगर किसी पेशेंट को सर्जरी रिलेटेड कोई इशू उससे पहले ही उसे एमआई हुआ है, तो रिस्क इज हाईएस्ट इन द फर्स्ट 3 months फॉलोइंग द एमआई, so you should defer the surgery till that period at least for 6 months. अगर किसी को कोई इलेक्टिव इशू, फर्स्ट करें पेशेंट उसको कोलिलिथियासिस है और उसको अगर हार्ट अटैक होता है, एमआई होता है, यू विल डेफर सर्जरी टिल द फर्स्ट 6 months। 3 months के बाद वो शुरू होता है, आफ्टर 6 months सर्जरी। ECG should be performed in all such patients and advanced investigations like echocardiography should be performed as per cardiologist review. In that case, जब भी कोई ऐसा पेशेंट होता है तो हम उसका कार्डियोलॉजी रिव्यू जरूर करवाते हैं, बिकॉज हम तो अपने सर्जरी के हिसाब से वी थिंक रिलेटेड टू सर्जरी, बट इन ऑर्डर टू इंश्योर के पेशेंट कैन अंडरगो सेफली एनेस्थीसिया, आप पीसीजी और बाकी एडवांस इन्वेस्टिगेशन ईसीजी एकोकार्डियोग्राफी वगैरह करवाते हैं एज पर कार्डियोलॉजिस्ट। अगर किसी की एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस एडजस्ट नहीं हुई थी वो करवानी होती हैं, कोई एस्पिरिन ले रहा है तो उस नहीं ले रहा तो वो शुरू करवाने का, और ले रहा है तो 5 to 7 days पहले स्टॉप करवाना, ये सारा इसके अंदर। उसके बाद आ जाता है रेस्पिरेटरी, सेकेंड लीडिंग सर्जरी। ठीक है, अच्छा, इसमें मोस्ट कॉमनली कौन से पेशेंट्स आते हैं जिनको सीओपीडी एंड अस्थमा? देयर आर मल्टीपल पेशेंट एंड प्रोसीजर रिलेटेड फैक्टर्स। अच्छा, पेशेंट रिलेटेड में क्या है, एज ज्यादा हो, ए से ग्रेटर देन 2 है, यानी सिवियर सिस्टमिक डिजीज वाला, एज अबव 60 हो, एल्बुमिन लेस देन 3, एल्बुमिन लेस देन 3 इज एन इंडिकेटर फॉर मैल न्यूट्रिशन। किसी की बॉडी में अगर मैल न्यूट्रिशन है और एल्बुमिन दूसरा क्या करता है, इट रिटेन्स वाटर विद इटसेल्फ,
किसी का एल्बुमिन कम होगा तो उसको बॉडी में एडिमा होना शुरू हो जाएगा। तो अगर चेस्ट में एडिमा होगा तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया मिलेगा, उससे वो रिकवर नहीं हो पाएगा, इसलिए ये रिस्क फैक्टर। सर्जरी lasting more than 3 hours, thoracic and abdominal surgery, emergency surgery and general anesthesia. Regional anesthesia is safer than general anesthesia, जो कि spinal में जो हम lumbar vertebrae lumbar puncture करके CSF के थ्रू देते हैं, वो सेफर होता है, लेकिन उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन इट डजंट कवर द होल बॉडी। जनरल एनेस्थीसिया में पूरी बॉडी को सेडेट पैरालाइज करते हैं, ठीक। अच्छा, चेस्ट एक्सरे के अलावा पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट PFTs, ABGs, arterial blood gases will be done to evaluate severity of respiratory compromise। अच्छा, इसके अलावा पेशेंट को ऑप्टिमाइजेशन में क्या बताएंगे? प्री ऑपरेटिव चेस्ट फिजियोथेरेपी। चेस्ट फिजियोथेरेपी का मतलब होता है बैक से यू स्टार्ट टैपिंग द चेस्ट सो दैट द रिटेन सेक्रेशंस कम आउट। इंसेंटिव स्पायरोमेट्री। स्पायरोमेट्री नहीं होता किसी के पास मशीन, तो इन आवर सेटअप वी एडवाइज बलून इन्फ्लेशन। It causes a good exercise of the lungs. Medical therapy and bronchodilator and nebulization, these are equally important, ठीक है। Diabetic patients are at higher risk of any surgery due to susceptibility to infection, delayed wound healing and vascular complications, ठीक है। अच्छा, pre-operative RBS and HbA1c should be done। HbA1c क्या है? Glycosylated hemoglobin। It shows the long term 3 to 6 month record of the regularity of the blood sugars of someone's body। RBS तो आप day to day देख सकते हैं, but if you have to see how was your metabolic panel for the last 3 to 6 months, we will go for HbA1c। तो जो diabetic patients होते हैं उनके हम RBS भी करवाते हैं, HbA1c भी करवाते हैं to assess the glycemic control, and you defer surgery until blood sugars are normal। We have patients with inguinal hernia who are diabetic, so and uncontrolled diabetes, because यहाँ हमारे यहाँ ज्यादातर नॉन कंप्लायंस medications, patient are afraid to use medications, हकीम के पास जाना ये सब। So you have to tell them that they will maintain a diary, they will do their sugars thrice a day and fasting, postprandial यानी खाने के बाद and bedtime। तो उससे आपको पता लग जाएगा with medication how they are, and you will delay the surgery until sugars are normal, ठीक है। अच्छा, अब कोई शुगर वाला डायबिटिक पेशेंट है जिसको आपने रख लिया अपनी लिस्ट पे सर्जरी के लिए, नाउ द शुगर्स आर कंट्रोल्ड, तो आप ओरल डोज ऑफ एंटी डायबिटिक ड्रग्स जो है वो उस दिन रोक देंगे, ठीक है, जिस दिन सर्जरी होने, क्योंकि आपने रात से मिडनाइट एनपीओ किया। सो डायबिटिक पेशेंट्स क्योंकि वो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स लेते हैं ना, तो उनका थ्रेशोल्ड फॉर गोइंग इनटू हाइपोग्लाइसीमिया भी लो होता है, यानी क्योंकि उनकी बॉडी अडेप्ट हो जाती है, तो वो जल्दी हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकते हैं। सो मिडनाइट एनपीओ जब आप उन्हें करते हैं तो सुबह उनका ओरल डोज ऑफ एंटी डायबिटिक ड्रग्स जो है वो मिस कर देते हैं, एंड देन यू चेक द शुगर्स एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट यू गिव इंसुलिन शॉर्ट एक्टिंग, ठीक। और दूसरी चीज क्या करनी होती है, सर्जरी के दौरान भी हाइपोग्लाइसीमिया चेक करना है विद आरबीएस, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट डायबिटिक पेशेंट शुड बी केप्ट फर्स्ट ऑन लिस्ट, क्योंकि द लॉन्गर द nil by mouth period, the longer the chances of hypoglycemia, the longer the chances of further complications, the higher the chances। So you have to keep that in mind। इसके बाद एंड स्टेज लिवर एंड किडनी डिजीज, ये भी उसी तरह है कि अगर किसी को सिरोसिस एंड स्टेज लिवर डिजीज है, मतलब डिकम्पेंसेटेड लिवर डिजीज है, एंड स्टेज रीनल डिजीज, किडनी डिजीजेस है, you cannot give them anesthesia because the liver and kidney, what are they? They are the metabolic organs to detoxify the all of the toxins which come in our body। ड्रग्स हो गई, फूड हो गया, जो भी चीज हम लेते हैं वो इन्हीं के जरिए मेटाबोलाइज होती है, खासतौर पे जो ड्रग्स दी जाती है। एनेस्थेटिक ड्रग्स जो है वो लिवर और किडनी के जरिए ही डिटॉक्सिफाई होकर बॉडी से निकलती है, फर्स्ट लिवर में, वहां से किडनी में यूरिन के जरिए। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल फॉर बोथ ऑफ दीज ऑर्गन्स। अगर कोई आप नेफ्रोटॉक्सिक या क्या कहते हैं लिवर के लिए टॉक्सिसिटी बढ़ाने वाली ड्रग्स यूज कर रहे हैं, हेपेटोटॉक्सिक, so you should know that their liver function and renal function tests are absolutely fine and they will go well after surgery, ठीक। अगर किसी के functions derange होंगे, so you will stop the surgical procedure, you will not go for the surgical procedure, you will go for the minimum surgery, the least invasive procedure, या उससे पहले अगर किसी को फर्स्ट करें क्रिएटिनिन 5 है 7 है विद पोटेशियम 6 and 7 तो डायलिसिस करवा के फिर सर्जरी करें। You have to see के इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी, ठीक है। अच्छा, ये जो रीनल डिजीज होती है CKD, ये प्राइमरीली नहीं होता, ये सेकेंडरीली ज्यादातर डायबिटीज हाइपरटेंशन की वजह से। सो अगर इफ यू कंट्रोल डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन वेल, किडनीज विल बी फंक्शन वेल, ठीक है।
अच्छा, जो किडनी लिवर डिजीजेस के पेशेंट्स होते हैं, मैंने बताया था कोएगुलोपैथी ब्लीड ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है वो लिवर बनाते हैं। लिवर इज फैक्ट्री और मेटाबॉलिक फैक्ट्री, तो क्लॉटिंग फैक्टर्स है, प्रोटीन है, सब बनाते हैं। तो अगर किसी के लिवर अच्छा फंक्शन नहीं कर रहा है, ठीक है। अच्छा, असेसमेंट ऑफ एनीमिया बहुत जरूरी है। सर्जरी अगर इलेक्टिव करनी है सो पेशेंट एचबी शुड बी एटलीस्ट 10 ग्राम पर डेसीलीटर। उससे कम होगा सो या तो आप आयरन प्रिपरेशंस देंगे या विटामिन बी सप्लीमेंट्स देंगे अकॉर्डिंग टू द डेफिशिएंसी व्हिच इज कॉजिंग एनीमिया, ठीक है। या अगर बहुत ज्यादा डी तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इमरजेंसी सर्जरी में किसी का 8 है 7 है, दिस इज इमरजेंसी, यू कैन नॉट वेट फॉर द आयरन सप्लीमेंट्स एंड एवरीथिंग टू वर्क, इट विल टेक वीक्स टू वर्क, सो आप फॉरन ट्रांसफ्यूज कर देते हैं बिफोर सर्जरी, ठीक है। अच्छा, ब्लड जो डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि किसी को हेमोफीलिया है, किसी को फैक्टर 8 डेफिशिएंसी है, फैक्टर 7 डेफिशिएंसी है, या थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, so you have to discuss it with hematologist. अच्छा, अब हमने ये डिस्कस कर लिया कि प्री ऑपरेटिवली हिस्ट्री एग्जामिनेशन क्या होती है, लैब्स क्या होती हैं, रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, कैसे इवैल्यूएट करते हैं, कैसे एड्रेस करते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट चीज है न्यूट्रिशनल स्टेटस, क्योंकि इफ समवन इज malnourished and you do a massive surgery, the results are poor, your surgery will fail. क्यों? कि सर्जरी itself is a trauma to body, ठीक है। जो पेशेंट का बॉडी, हमारी जो बॉडी होती है वो रिस्पॉन्स करती है ट्रॉमा पर, so surgery itself is a trauma. If your body is not that strong enough to respond to that trauma, any surgery, any good surgery you do will fail. So you have to assess the pre-operative malnutrition. If patient is malnourished, there are increased risk of surgical complications. सबसे पहले उसमें क्या होगा, wound healing impaired होगी, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा, इन्फेक्शंस हो सकते हैं पेशेंट को बहुत ज्यादा, और लेंथ ऑफ हॉस्पिटल स्टे बढ़ जाता है। अच्छा, मेल न्यूट्रिशन इज कॉमन इशू इन कैंसर पेशेंट। क्यों? कि एक तो मोस्टली इल होते हैं, डेबिलिटेटेड होते हैं, दे डोंट वांट टू ईट, वेट लॉस भी होता है क्योंकि कैंसर के कैक्सिया भी करवाते हैं, तो इसलिए दे आर मेल न्यूट्रिश्ड, ठीक है। दिस एग्जैसरबेट्स इन पोस्ट ऑपरेटिव फैक्टर्स, क्योंकि मैंने बताया कि सर्जरी itself is a trauma और बॉडी रिस्पॉन्स करती है उसको एज ए कैटाबॉलिक स्टेट। बाद में फिर एनाबॉलिक फेज आता है जिसमें चीजें डिवेलप होती हैं। फर्स्टली इट इज ए कैटाबॉलिक फेज, तो उसमें इंक्रीज डिमांड बढ़ जाती है बॉडी की फॉर दोज न्यूट्रिशनल फैक्टर्स। खासतौर पर अगर बावल की सर्जरी हो रही है तो ये चीजें आपको देखनी होती है। अच्छा, प्री ऑपरेटिव न्यूट्रिशनल इवैल्यूएशन शुड बी कंसीडर्ड इन पेशेंट एट रिस्क फॉर malnutrition, ठीक है। दिस इज ट्रू इन पेशेंट्स अंडरगोइंग हाई रिस्क सर्जरी, ठीक है। Why people avoid to give water to surgical patient, मैंने अभी बताया, या आगे भी हम डिस्कस करेंगे। nil by mouth, पेशेंट को अगर आप सर्जरी कर रहे हैं एंड यू आर गोइंग टू गिव जनरल एनेस्थीसिया, यू हैव टू कीप द GIT ट्रैक्ट एम्प्टी, अदरवाइज जब आप जनरल एनेस्थीसिया देंगे थ्रू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, थ्रू द लंग्स, गैसेस के थ्रू, तो पेशेंट की बॉडी फ्लैसिड हो जाएगी, है ना, पैरालाइज हो जाएगी। इट विल बी ऑन वेंटिलेटर विद द सपोर्ट ऑफ मेडिकेशंस। सो देयर आर चांसेस कि अगर किसी ने रिसेंटली खाया पिया है, ही और शी कैन एस्पिरेट, इट कैन गो इनटू द लंग्स, कॉज डेथ एंड एस्पिरेशन निमोनिया। सो इट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। निल बाय माउथ बहुत जरूरी है, आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। यू विल गेट योर आंसर। उसके बाद आ जाता है सीरम एल्बुमिन लेवल, जैसे कि मैंने बताया कि इज अ मार्कर फॉर न्यूट्रिशनल पैनल। सो किसी का अगर लेस देन 3 है तो यू शुड असेस, यू शुड एंटिसिपेट कि ही और शी विल हैव अ पुअर वुंड हीलिंग एंड इंक्रीज पोस्ट ऑप मॉर्बिडिटी। अच्छा, अब न्यूट्रिशन जब आप पढ़ेंगे आगे जाके इन योर फर्दर एडवांस लेवल, यू विल सी देयर आर प्लेंटी ऑफ न्यूट्रिशनल रूट्स। द बेस्ट इज वन विच वी ऑल हैव, द ओरल रूट, ठीक है। Due to some reason patient are not able to take orally, so हम enteral is a kind of oral route, लेकिन उसमें ये कि patient is not able to eat ना, तो हम nasogastric tubes use करते हैं या हम stomach में ट्यूब पास कर देते हैं, जिसको gastrostomy या small bowel में पास कर देते हैं, jejunostomy। The thing is antrum means the gut ना, to use the gut, तो the natural process हमारी body में अल्लाह ने क्या रखा है कि we eat and it goes into the right into from the esophagus, stomach and then intestine into the rectum,
सो द नॉर्मल रूट इज यूज। अगर वो नॉर्मल रूट नहीं यूज होगा, यूजलेस हो जाएगा, पेशेंट की बावल में जो हमारे बॉडी में नॉर्मल फ्लोराज है, दे विल डिप्लीट, दे कॉज इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। बहुत सारे जो हमारे ट्रेस एलिमेंट्स आयरन वगैरह वो प्रोड्यूस नहीं होते बिकॉज वो नॉर्मल फ्लोरा की हेल्प से होते हैं, और आयरन एब्जॉर्प्शन स्मॉल बावल में होती है। तो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। इसके बाद इसलिए एंट्रल रूट इज सो मच इम्पोर्टेंट फॉर न्यूट्रिशनल सपोर्ट, ठीक है। देयर हैव बीन अ नंबर ऑफ प्रपोज्ड एडवांटेजेस फॉर एंट्रल न्यूट्रिशन, ठीक है। These include preservation of gut mucosa, decreased leakage of gut bacterial antigens, reduction of inflammation and immune system की maintenance, जो मैंने आपको सारा कुछ बताया, ठीक है। Improvements in outcome that have been consistently demonstrated for anterior over parenteral include fewer related infectious complication, reduced cost and earlier gut function। हाँ, इसमें ये कि देखो जो the natural the better, क्योंकि बावल यूज हो रही होती है तो इन्फेक्शन का रेट कम होता है, इम्यून एनहांसमेंट होती है, जो मैंने आपको बताया सारे फैक्टर्स वो बन रहे होते हैं, ठीक है। इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन कम होती है, कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस कम होते हैं, एंड पेशेंट कम्स टू द नॉर्मल रूटीन सूनर एंड द रिड्यूस्ड हॉस्पिटल स्टे। फिर आ जाती है पैरेंटल न्यूट्रिशनल सपोर्ट मे बी कंसिडर्ड फॉर पेशेंट हु आर मेलनरिश्ड, ठीक है। ओनली जो नॉर्मली हेल्दी है उनमें आप कुछ नहीं, क्योंकि उसमें वेट की भी इंपॉर्टेंस है, चेक द वेट प्री ऑपरेटिवली एज वेल। Patients with low or intermediate levels of malnutrition can be considered for pre-operative nutritional supplements. Weight check करते हैं, nutritional panels check करते हैं, जैसे arm circumference है, albumin है, and then you assess कि इसका nutrition status कैसा है, normal है, he can go for surgery. अगर low है और oral route use हो सकता है, patient is able to eat, तो you give nutritional supplement. जैसे most commonly हमारे setup में कौन सा use होता है, Ensure. Everybody must have heard about that. सबकी फैमिली में कहीं ना कहीं एल्डरली वगैरह होते हैं जिनमें यूज किया जाता है। डायबिटिक पेशेंट में हम इंश्योर यूज नहीं करते, यूज ग्लूसाइन इंस्टेड, बिकॉज उसमें लोअर क्वांटिटी ऑफ ग्लूकोज होती है, ठीक है। सो प्री ऑपरेटिव फुल न्यूट्रिशनल सपोर्ट रिमेन्स कंट्रोवर्शियल, जनरली कंसिडर्ड इन पेशेंट विद सिवियर मैलन्यूट्रिशन। अच्छा, ये बात हो रही है उसकी। फुल न्यूट्रिशन मींस पैरेंटल थ्रू आईवी, ठीक है। पैरेंटल का मतलब है थ्रू आईवी, नॉट द एंट्रल रूट। These patients should receive 7 or more days of enteral parenteral nutrition prior to surgery. Post-operatively, oral nutrition should begin as soon as possible, ठीक है। जैसे ही पेशेंट का आपने एनेस्थीसिया का इफेक्ट खत्म हुआ, पेशेंट ने कॉन्शियस रिगेन किया, कोई बावल रिलेटेड ऐसे सर्जरी नहीं हुई, कोई मैसिव सर्जरी नहीं हुई, इवन इन दैट केस आजकल एक इनहैंस्ड रिकवरी प्रोटोकॉल है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, उसमें आप जल्दी स्टार्ट कर देते हैं पेशेंट, ठीक है। Patient who may not be able to tolerate oral intake for a prolonged period of time should be considered for pre or intra placing feeding tubes, जो मैंने बताया कि NG है, गेस्ट्रोस्टमी है या जिजनोस्टमी, ठीक है। जिनका बिल्कुल GI ट्रैक काम नहीं करता उनको आप पैरेंटल दें। अच्छा, प्री ऑप प्रिपरेशन, ठीक है। अब आपने सब कुछ कर लिया ना, पेशेंट फिट हो गया सर्जरी के लिए, अब आप प्री ऑप प्रिपरेशन में क्या करेंगे, जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि सर्जिकल साइड इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए क्या करना है, डीवीटी प्रोफाइलैक्सिस, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, इसके लिए क्या करना है, निल बाय माउथ, जो कि एक बच्चे ने भी सवाल पूछा था, एंड मैकेनिकल बाउल प्रिपरेशन। बाउल प्रिपरेशन हर केस में हम नहीं करते, सिर्फ लार्ज बाउल सर्जरीज में करते हैं, ठीक है, लेकिन दैट इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू हम डिस्कस करें। सर्जिकल साइड इन्फेक्शन या SSI को प्रिवेंट करने के लिए वी गिव सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स, नॉट इन क्लीन केसेस। अब देखो ये ध्यान में रखना जरूरी, व्हाट इज अ क्लीन सर्जरी, व्हाट इज अ क्लीन कंटामिनेट, व्हाट इज अ कंटामिनेट। क्लीन सर्जरी इज इन विच यू डू नॉट क्रॉस द GIT, द रेस्पिरेटरी, द जेनिटल ट्रैक, ठीक है, इन तीनों को आप नहीं ब्रीच करते, तो दिस इज द क्लीन सर्जरी। जैसे कि आप हर्निया सर्जरी कर रहे हैं, या जैसे कि आपको लिम्ब में वैस्कुलर सर्जरी कर रहे हैं, बाईपास वगैरह बना रहे, तो दीज आर क्लीन सर्जरीज, ठीक। अगर अच्छा हाँ, जेनेटो यूरिनरी, 4 चीजें हुई, रेस्पिरेटरी, GIT, जेनेटो यूरिनरी, 4 सिस्टम्स अगर आप ब्रीच नहीं कर रहे, दिस इज अ क्लीन सर्जरी, और एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, एग्जांपल्स के साथ। अच्छा, अगर अच्छा, अगर किसी का क्लीन कंटामिनेटेड है, इसका मतलब यह है यू हैव टू ब्रीच दीज ऑर्गन्स, आपने इनमें से किसी एक पे सर्जरी की है, बट देयर इज नो स्पिलेज ऑफ पस, नो कंटामिनेशन, नो साइंस ऑफ इन्फेक्शन, दिस इज अ क्लीन कंटामिनेटेड। कंटामिनेटेड क्या है कि कोई पेरिटोनाइटिस हो गया पेशेंट को, परफोरेटेड गॉल ब्लैडर हो गया, परफोरेटेड बावल हो गई, तो वो कंटामिनेटेड हो गई। और डर्ट जैसे ज्यादातर हम एब्डोमिनल पस ड्रेन करते हैं, एब्डोमिनल किसी वजह से पस बन गया, परफोरेटेड अपेंडिक्स की वजह से,
या फॉलोपियन ट्यूब्स में इन्फेक्शन हो गया गायनोकोलॉजी में, उस वजह से पी सेप्सिस जिसको कहते हैं, तो ये डर्टी सर्जरीज होती है। ठीक, तो ये वो क्लासिफिकेशन के हिसाब से होती है। अच्छा, किसी ने सवाल पूछा, in case of an emergency situation are these protocols followed? Yes, to an extent. ठीक है, इसमें हम पूरा प्री ऑप वर्कअप तो इमरजेंसी में करवा ही नहीं सकते ना, ये आई टोल्ड यू अर्लियर, इमरजेंसी सर्जरी में एवरी मिनट ऑफ पेशेंट काउंट्स, सो यू डोंट गो फॉर द फॉर्मल प्री ऑप वर्क। आप जल्दी से बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, पेशेंट की डायग्नोसिस आपको पता लगती है, पेशेंट को अच्छा सा हाइड्रेट करना है, एंटीबायोटिक्स देनी है, यूरिन आउटपुट मॉनिटर करना है, एनेस्थीसिया से डिस्कस करना है दैट दिस इज एन इमरजेंसी सर्जरी एंड देन यू टेक हिम टू ओपी। ठीक है, अगर हाँ, उसमें इसीलिए हम इमरजेंसी में हाई रिस्क कंसर्न लेते हैं और हाई रिस्क सर्जरीज लेबल करते हैं, क्यों कि आपने बहुत सारी चीजें रूल आउट नहीं की हुई थी। ठीक, अच्छा, एंटीबायोटिक्स आर जनरली नॉट इंडिकेटेड फॉर इलेक्टिव क्लीन केसेस। अब ये आप बताएंगे क्लीन केसेस कौन से ड्यू टू लो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। Clean contaminated cases में where organs such as those of genitourinary and gastrointestinal tracts may be injured, or in emergency cases prophylactic antibiotics are routinely administered. ठीक है, अच्छा, पोस्ट ऑपरेटिवली भी हम लोग देते हैं, अपने पास 2 एंटीबायोटिक शॉर्ट डोजेस काफी होते हैं पोस्ट ऑपरेटिव, तो 2 डोज आपने दे दिए, दिस आर इनफ। लेकिन अगर किसी को बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है, सेटल नहीं हो रहा, फीवर आ रहा है, वो उसके पास सारी कंटिन्यू विद दोज एंटीबायोटिक्स। ठीक है, what is the protocol of giving prophylactic antibiotics? It should be given no more than 30 to 60 minutes prior to time of incision. यानी किसी को अगर इंसिशन लगना है उससे आधे से 1 घंटा पहले आपने देना, उससे पहले देंगे तो उसका इफेक्ट नहीं रहेगा। ठीक है, अच्छा, उसमें आपकी एंटीबायोटिक की चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम मैंने आपको बता दिया। ठीक है, डोजिंग ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे, abdominal surgery which is not associated with significant contamination like lab coli requires only a single dose of prophylactic antibiotic before induction of anesthesia. ठीक है, ज्यादातर हम सिंगल डोज ही देते हैं, सर्जरीज लास्टिंग मोर देन 4 hours 6 hours, उसमें फिर आप सेकंड डोज रिपीट कर देते हैं आफ्टर 4 hours। ठीक, मोस्ट कॉमनली क्या क्या ग्रुप्स हम यूज करते हैं, सेफ्लोस्पोरिन 3rd जनरेशन, ठीक है, टाइटन है, प्रोसेफन है, सेफरिक्सीम है। ठीक है, व्हाट आर इलेक्टिव क्लीन केसेस? अभी मैंने मिसाल दी ना आपको कि इंग्वाइनल हर्निया की सर्जरी, इंग्वाइनल हर्निया दैट इज इलेक्टिव क्लीन केस। इलेक्टिव वेस्कुलर सर्जरी रिपेयर की आपने, जैसे कि फेमोरल आर्टरी का आपने नीचे टिबियल आर्टरी से बाईपास क्रिएट किया, दैट इज अ क्लीन सर्जरी। कैरोटिड और सबक्लेवियन को कनेक्ट किया, दैट इज अ क्लीन सर्जरी। सो क्लीन सर्जरीज की मिसाल थायराइड सर्जरी है, वो भी क्लीन सर्जरी। ठीक, इसमें हमने चारों ट्रैक्स ब्रीच नहीं किए ना, आपको खुद समझ आ जाएगा, दैट इज अ क्लीन सर्जरी। तो एंटीबायोटिक्स हमारे पास सेफ्लोस्पोरिन्स हैं, फ्लोरोक्विनोलोन्स नोविडेट के नाम से जाते हैं, मेट्रोनिडाजोल, फ्लैजेल एंड कॉमेक्सिक्लेट, ये ग्रुप ज्यादातर हम यूज करते हैं। ठीक, अच्छा, फिर थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की बात हो रही थी, मैंने कहा था ना कि डीवीटी के तो रिस्क फैक्टर असेस करना। अब ये रिस्क फैक्टर्स, किसी की पास्ट मंथ्स में सर्जरी हुई है, सर्जरी कॉजेज हाइपरकोएगुलेबिलिटी, इस वजह से वो रिस्क फैक्टर है। ट्रॉमा, किसी को सीवियर हुआ है, ट्रॉमा पता है ना आप लोगों को, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हो गए, गन शॉट हो गया, छत आगे गिर गई, क्रश इंजरीज हो गई, डायबिटीज, हार्ट फेलियर, 60 ईयर्स से अबव एज, प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन स्ट्रोक की वजह से। ठीक है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इन फीमेल्स, ओबेसिटी इज अ हाइपरकोएगुलेबल थिंग, आर्टेरियोपैथीज, वेस्कुलाइटिस वगैरह, वो भी एक रिस्क फैक्टर्स है, क्योंकि इंजरी टू वेसल्स होती है, तो वहां पे प्लेटलेट्स आके एक्यूमुलेट होते रहते हैं, जिनमें पोस्ट थ्रोम्बोसिस, बट कैंसर इज एन हाइपरकोएगुलेबल स्टेट। तो pulmonary emboli and DVT are 2 major causes of death of surgical patients. Prophylaxis should be taken for all patients pre-op to minimize post-op morbidity and mortality. Factors कैसे minimize करेंगे? Pre and post-op हो रहा है, subcutaneous heparin देंगे और स्टॉकिंग्स देते हैं। ठीक है, अगर कोई लो रिस्क पेशेंट होता है, हम स्टॉकिंग्स देते हैं, मोज़ेक ग्रेजुएटेड स्टॉकिंग्स होते हैं, आप लोग देखेंगे पेशेंट्स में ICU में। अगर थोड़ा सा इंटरमीडिएट हाई रिस्क होता है तो उसमें हम लो मॉलिक्यूलर वेट सबक्यूटेनियस हेपरिन, स्किन में इंजेक्शन लगाते हैं। आईवी हेपरिन पहले देते थे, अब कम देते हैं, उसके साइड इफेक्ट्स। ठीक, अच्छा, अब ये निल बाय माउथ जो किसी ने पूछा था कि पानी हम क्यों रोक देते हैं, पेशेंट्स आर एडवाइज्ड नॉट टू टेक सॉलिड्स विद इन 6 hours and clear fluids like glucose, like ORS and water within 2 hours before anesthesia to avoid the risk of acid aspiration syndrome. These restrictions are further reduced in infants, क्योंकि बच्चों में आप प्रोलॉन्ग डिहाइड्रेशन नहीं करवा सकते, तो बच्चों में तो 1 to 2 hour भी आप अगर दूध फीड करवाया छोटे बच्चों में चल जाता है।
If the surgery is delayed, oral intake of clear fluid should be allowed until 2 hours before surgery. ठीक है, या फिर आप IV फ्लूइड शुरू कर दें, वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों की कंप्लायंस कम है। अगर हम किसी पेशेंट को कहना बाबा एक ढक्कन पानी के लिए ग्लास पी ले, तो उसको रोकने के लिए जरूरी है कि आप उनको बोलेंगे नहीं, आपको सर्जरी आपकी होनी एंड यू स्टार्ट इंट्रावेनस फ्लूइड। ठीक, अच्छा, जैसे ही सर्जरी खत्म होगी, पेशेंट अपनी नॉर्मल पहले सिप्स ऑफ वाटर एंड देन ओरल एंड देन द फॉर्मल डाइट ले सकते। बाउल प्रिपरेशन, बाउल प्रिपरेशन का क्या मतलब है? स्मॉल बाउल की सर्जरी हो रही है, जेजुनम आइलम की, वी विल नॉट गो फॉर एनी बाउल प्रिपरेशन। लार्ज बाउल की हो रही है, यानी सीकम से लेकर रेक्टम तक। सीकम का कैंसर है, राइट हेमिकोलेक्टोमी होनी है, लेफ्ट होनी है, हार्टमैन्स होना है, इलेक्टिव में, इमरजेंसी में नहीं, इलेक्टिव। तो आप ये बाउल प्रिपरेशन करवाएंगे क्योंकि 72 आवर्स का पूरा एक प्रोसेस होता है। इसका व्हाट इज द एम बिहाइंड दिस? इट डिक्रीज बैक्टीरियल लोड इन द कोलोन, रिस्क ऑफ वूंड इन्फेक्शन कम हो जाता है, और क्योंकि आपने गट को क्लीन कर दिया ना सारे बाउल related bacteria से और fecal matter से, सारे shit से, so if you do an anastomosis after resecting your interested bowel part जो कि diseased है, तो जो anastomosis है वो take करने के chances ज्यादा होते हैं। ठीक है, वो burst out नहीं होता। अच्छा, mechanical bowel में क्या होता है कि आप laxatives use करते हैं, you have to just give it the patient ताकि उसको diarrhea और सारा material जो है उसकी body से loss fecal matter है along with the bacteria, bowel gets clean। इसमें electrolyte imbalance हो सकता है, dehydration हो सकती है, अगर किसी को CKD तो renal failure भी हो सकता है, तो इसलिए आपको उसको hydration साथ में लेना जरूरी होता है। एक और चीज क्या करनी होती है साथ में, IV एंटीबायोटिक्स भी आज आप देते हैं तो ज्यादातर नाइट्रोमोडस वाले होते हैं। ठीक, अच्छा अब और इसके अलावा और आप क्या करते हैं, मैंने बताया हम प्री ऑफ हिस्ट्री एग्जामिनेशन, लैब्स कराएंगे, सारी इमेजिंग करवाएंगे, ठीक, न्यूट्रिशन रिस्क असेस करेंगे, न्यूट्रिशन को देखेंगे, फिर हम DVT प्रोफाइल एक्सेस करेंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे, मैकेनिकल बाउल पैर इंफेक्शन, ये सारी चीजें हम करेंगे। और क्या करेंगे कि आप चेक कर लेंगे ये एनेस्थेटिक वर्कअप सारा कंप्लीट है, एनेस्थीसिया से डिस्कस हो गया टीम से कि पेशेंट इज फिट फॉर सर्जरी, इन्फॉर्म्ड एंड रिटन कंसेंट। इसका क्या मतलब है? पेशेंट should be explained in detail the type of procedure, the day of surgery, the time of surgery, what pre and post operative consequences will be, how he will go home। ठीक है, हम सर्जरी में क्या करने लगे, डायग्नोसिस क्या था, ये सब चीजें उसको बतानी है, रिटन एंड इन्फॉर्म, पहले बताना है फिर लिखवा के सेंड करना है। ठीक है, एंड देन द शेविंग ऑफ द ऑपरेटिव एरिया, जैसे इंग्वाइनल हर्निया है, दैट इज इन ग्रोइन, दे हैव सो मच हेयर्स, सो इन ऑर्डर टू अवॉइड इन्फेक्शन इन दैट एरिया बिकॉज ऑफ द हेयर्स, आपको वो शेव करना होता है। शेव शुड नॉट बी डन मोर देन 12 आवर्स, क्योंकि वो नॉर्मल स्किन फ्लोरा चले जाते तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए आप आइडियली शेविंग शुड बी डन इन OR। अगर आपको ये है कि हमारे पास टाइम नहीं है, जैसे हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, यू हैव टू डू हरी सारी चीजें तो जल्दी करनी होती है, तो हम उनको पहले करवा देते रात में। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए अरेंजमेंट्स करनी होती है रात में, क्योंकि सर्जरी इज अ टाइप ऑफ मेंटल एंड फिजिकल ट्रॉमा टू द बॉडी। आप एंग्जाइटिक देते हैं ताकि वो अच्छे से सो जाए, हाइड्रेशन करते हैं क्रिस्टलॉइड्स एंड नॉर्मल से एंड मिनरल लैक्टेट से। ठीक है, कोई और प्रिपरेशन जैसे बाउल प्रेप मैंने बताया वो करनी है। किसी को डायबिटीज, हाइपरटेंशन, एस्पिरिन ले रहा है तो ये एडजस्ट करनी है, ये भी हम डिस्कस कर चुके। ठीक है, वारफेरिन 48 आवर्स बिफोर बंद करते हैं और लो मोलिकुलर वेट हैपन से रिप्लेस करते हैं। ज्यादातर वारफेरिन वो पेशेंट लेते हैं जिनमें एओर्टिक वेल्वुलर हार्ट डिजीजेस होती है, तो जब पेशेंट ओरली स्टार्ट कर देता है तो फिर आप दोबारा वारफेरिन पे ले आते हैं, लेकिन जब तक NPO रहता है 48 आवर्स पहले से आप ये शुरू कर देते हैं। ठीक, एस्पिरिन पहले कहते थे कि 5 to 7 डेज लाजमी बंद करनी है, मगर रिसेंट का इससे कि इन कार्डियक पेशेंट्स एस्पिरिन शुड बी कंटिन्यू। ठीक, इंट्रोप के, अच्छा अब फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया, अब इंट्रोप आ गया। जब सर्जरी के लिए पेशेंट ऑन टेबल है, आप क्या करेंगे, इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया भी होनी है। सो यू विल डू स्किन प्रिपरेशन, जो एरिया ऑपरेट करना है उसकी स्किन प्रिपेयर करनी है, यानी टू मेक इट स्टेरिलाइज, एंटीसेप्सिस करना है वहाँ पे प्रेप एंड ड्रेप करके। ब्लड प्रोडक्ट्स जो यूज होंगी वो क्या होंगी उसके बारे में पता होनी चाहिए, पेशेंट की कंटिन्यूस मॉनिटरिंग OR। ठीक है, ये होती है स्किन प्रिपरेशन इज द मेजर कंपोनेंट। एक तो हमने पढ़ा कि प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स SSI रोकते हैं, दूसरी क्या चीज होती है, स्किन प्रिपरेशन। अगर यू ओपन एनी पेशेंट विदाउट प्रिपेयरिंग द स्किन, विदाउट applying any antiseptic agent, there are high likely chances that he will have wound infection। ठीक है, तो एक दूसरी चीज मैंने क्या बताया था कि एरिया शेव करना है लेकिन नॉट मोर देन 12 आवर्स, वो भी रिस्क बढ़ा देता है, तो क्लिपर से करना है रादर देन रेजर से। स्किन इज रूटीनली प्रिपेयर्ड विद एंटीसेप्टिक एजेंट। ठीक है, कॉमनली यूज हमारे पास फॉरवर्डोन आयोडीन होता है, इसके अलावा ये चीज CHG क्लोरहेक्सिडीन भी यूज कर सकते हैं, बट इट्स बिट एक्सपेंसिव,
ज्यादातर पाकिस्तान में पॉविडोन आर्डिनोलोसिस होता है, ठीक है। कंटामिनेटेड एरियाज आर प्रिपेयर्ड लास्ट, जैसे कि ग्रॉइन है, ठीक है, पेरिनियल एरियाज है, कोई एब्सेस वाला एरिया है जिसको ऑपरेट करना है तो वो लास्ट में, सराउंडिंग स्किन पहले प्रिपेयर करेंगे, वहां बाद में आएंगे, ठीक। और इन सर्कुलर मोशन आते हैं, ये चीज तुम लोगों को देखने से समझ आएगी ओटीज इंशाल्लाह, ठीक। अच्छा, ब्लड प्रोडक्ट्स, ये दिस इज अ मेजर कंसिडरेशन थी। ट्रांसफ्यूजन्स की अपनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जैसे कि फीवर आना, एलर्जिक रिएक्शन होना, फ्लूइड ओवरलोड होना, ट्रॉली ट्रांसफ्यूजन इंड्यूस्ड लंग इंजरी, या उसमें सर्टेन अगर वो पूरा स्क्रीन नहीं तो वायरल इन्फेक्शंस हो जाए, ठीक। तो अच्छा, मैसिव आरबीसी ट्रांसफ्यूजन्स ओवर वन वॉल्यूम ओवर वन ब्लड वॉल्यूम आर एसोसिएटेड विद कोएगुलोपैथी। हाँ, देखिए होता है कि हमारी बॉडी में 5 लीटर ब्लड है, अगर किसी को कैंसर हुआ है या ट्रॉमा हुआ है एंड यू हैव ट्रांसफ्यूज होल ऑफ योर ब्लड वॉल्यूम, यानी 5 लीटर था, 5 लीटर ही आपने लेके ट्रांसफ्यूज कर दिया, यानी कि पैक्ड आरबीसीज आपने 10 ट्रांसफ्यूज कर दिए, एक 450 ml ऐसे होता है। सो देयर आर चांसेस दैट ही विल डेवलप डाइल्यूशनल कोएगुलोपैथी, क्योंकि आरबीसीज और बाकी चीजें तो जा रही हैं, प्लाज्मा भी जा रहा है, तो जो बॉडी के नेचुरल क्लॉटिंग फैक्टर्स है वो कम हो रहे हैं और प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, सो यू हैव टू ट्रांसफ्यूज दोज एंड फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मास एज वेल। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा में सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, ये जब आप और डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में, ठीक है। इंट्राऑपरेटिवली ब्लड लॉस शुड बी मिनिमाइज्ड विद मेटिकुलस सर्जिकल टेक्निक, यानी कि हेमोस्टेसिस अच्छे से सिक्योर करना है, डायथर्मी का यूज करना है, ठीक है। बिट बाय बिट टिश्यू प्लेन्स में सर्जरी करनी है, उंगली से ज्यादा मैनिपुलेशन नहीं करनी है कि ब्लीडिंग हो, एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कंडीशंस फॉर हेमोस्टेसिस सच एज टेम्परेचर। हाइपोथर्मिया कोएगुलोपैथी बढ़ाता है, ब्लीडिंग होती है, इसलिए टेम्परेचर कंट्रोल करना है, बॉडी का पीएच यानी एसिडोसिस मेटाबॉलिक जो वाला है वो भी कोएगुलोपैथी कराता है, उसको भी रोकना। तो एक चीज होती है ट्रायड ऑफ डेथ, भी आप लोग पढ़ेंगे, उसमें है हाइपोथर्मिया, कोएगुलोपैथी एंड एसिडोसिस। तो देखो, कोएगुलोपैथी टेम्परेचर का कम होना और एसिडोसिस यानी पीएच का कम होना, ये सब चीजें ब्लड लॉस बहुत ज्यादा कराती हैं क्योंकि फैक्टर्स डिरेंज हो जाते हैं, तो इसलिए आपको इसका बहुत ख्याल रखना, ठीक। आगे, अगर किसी को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया 50,000 से कम पे सर्जरी नहीं होगी बिकॉज देयर आर इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, ठीक है, एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। तो 50,000 किसी को अगर प्लेटलेट का डिसऑर्डर है, ठीक है, क्या कहते हैं उसको, आईटीपी है, ये सब चीजें इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्टुला वगैरह, तो उसमें 50,000 से कम हो गए तो आपने उसको ट्रांसफ्यूज करके फिर सर्जरी करनी अगर जरूरी है। पेशेंट विद कोएगुलोपैथी एज इंडिकेटेड बाय इंक्रीज आईएनआर, मैंने बताया था, मैं ऑल्सो बीन इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। तो इसमें क्या कंसेंसस है सबका कि कोएगुलेशन इज ओनली इम्पेयर्ड क्लिनिकली वंस द आईएनआर एक्सीड्स 1.5, तो इसीलिए कोएगुलोपैथी को करेक्ट करना होगा एफएफपी से या विटामिन के देना होगा। ये इंट्रा ऑप आप करते हैं दोनों चीजें, प्री ऑप भी असेस करके करते हैं, लेकिन इंट्रा ऑप भी आपको देखना है। जो मॉनिटरिंग इन दी ओआर में क्या होता है, ये जर्नल एनेस्थेटिस्ट का काम है, सर्जन का काम नहीं है, बट यू शुड नो दैट, क्योंकि टेबल के इस तरफ तो आप खड़े हैं, सर्जिकल साइड उस तरफ एनेस्थेटिस्ट है, तो ये उसका काम है। तो वो क्या क्या देखता है, वाइटल्स, पल्स, बीपी, टेम्परेचर, ऑक्सीजन सैचुरेशन, रेस्पिरेटरी रेट, पल्स ऑक्सीमीटर होता है, नॉन इन्वेजिव ब्लड प्रेशर। नॉन इन्वेजिव ब्लड प्रेशर का मतलब होता है कन्वेंशनल मेथड ऑफ टेकिंग बीपी विद कॉफ जो हम लेते हैं। जो इन्वेजिव होते हैं वो आर्टीरियल लाइन से लिए जाते हैं, दैट इज एडवांस थिंग फॉर यू, ठीक है। ईसीजी आ रही होती है, लीड लगी हुई होती है, वो देखना है। ऑक्सीजन का इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड गैसेस का रेशियो क्या है, क्योंकि हम ज्यादातर एनेस्थेटिक मेडिकेशंस यूज करते हैं, गैसेस यूज करते हैं, ठीक है। करने के लिए न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट दिए हुए, तो ये भी पेरिफेरल नर्व स्टिमुलेटर भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और टेम्परेचर देखना होता है 30 मिनट से ज्यादा, मैंने आपको बताया कि हाइपोथर्मिया से क्या कुछ होता है, ठीक। हेलो, आवाज आ रही है, ठीक है। पोस्ट ऑप केयर, पोस्ट ऑप केयर, अच्छा ये हमारा तीसरा पार्ट स्टार्ट हो गया, प्री ऑप इवैल्यूएशन, वी फिनिश्ड विद प्री ऑप इवैल्यूएशन एंड इंट्रा ऑप केयर, नाउ वी आर गोइंग फॉर पोस्ट ऑपरेटिव ऑब्जर्वेशन। Once the patient has done with surgery, you have successfully completed your 2 parts, the third part is he is done with surgery, anesthesia से out हो गया, तो you have to see the patient's vital signs, जो 4 चीजें मैंने बताई, ठीक है। the level of consciousness यानी कि GCS, pain and hydration status, उसको IV चल रही है, fluid नहीं चल रही, and this is all done in the recovery. The patient can be discharged, अच्छा PSU का मतलब है post anesthetic care unit, ठीक है, supportive room या रिकवरी रूम या पोस्ट एनेस्थेटिक केयर यूनिट में आप ये सब करते हैं, ठीक है।
When to discharge patient from PSU and send back to ward? क्या क्राइटेरिया? पेशेंट फुली कॉन्शियस है, रेस्पिरेटोरी रेट सही, ऑक्सीजन मेंटेन कर रहा है, नॉर्मोथर्मिक है, नॉट इन पेन, नॉट नॉजियस. अच्छा, नॉजिया क्यों होता है पेशेंट्स को? पता है ये बात किसी को? पेशेंट को नॉजिया इसलिए होता है क्योंकि पेशेंट जो है ना, हम जो एनेस्थेटिक मेडिकेशंस देते हैं उनका जो इफेक्ट होता है उसकी वजह से पेशेंट को नॉजिया होता है. ठीक. कार्डियोवास्कुलर पैरामीटर्स ठीक है, यानी बीपी पल्स ठीक है, एनाल्जेसिक दे दिया आपने, ठीक है, एंड यू आर सेटिस्फाइड विद योर सर्जिकल प्रोसीजर. तो ये समरी बॉक्स है फ्रॉम बेली एंड लव. ऑल एनेस्थेटिक पेशेंट शुड बी रिकवर्ड इन अ डेडिकेटेड पीएसयू. ऑल वाइटल पैरामीटर्स शुड बी मॉनिटर्ड एंड डॉक्यूमेंटेड. जिस तरह प्री ऑप चेकलिस्ट थी ना, इस तरह पोस्ट ऑप भी एक फॉर्म होता है जो फिल करते हैं. ट्रीट पेन एंड नॉजिया, वॉमिट, ऑब्जर्व फॉर कॉम्प्लिकेशंस. अब आपकी जर्नल पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस क्या है, मैं हेडिंग डालना भूल गई थी. प्री ऑप ये पोस्ट ऑपरेटिव जर्नल कॉम्प्लिकेशंस 4 होती हैं उसकी. ब्लीडिंग, हेमरेज यानी कि डीवीटी एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो अर्ली पोस्ट ऑप पीरियड है. लेट में तो कुछ भी हो सकता है रिलेटेड टू सर्जरी, एनीथिंग, ठीक है, रिलेटेड टू द सिस्टम व्हिच यू ओपन. लेकिन 4 जनरली चीजें जो होती है पोस्ट ऑप में, दैट इज ब्लीडिंग, डीवीटी एंड पीई, फीवर, मून डायलिसिस. ठीक. ब्लीडिंग इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जिसको हम हेमरेज भी कहते हैं. इट अकर्स इन द इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड. हेमरेज मोस्टली 3 तरह का होता है, इमीडिएट, अर्ली एंड लेट. जो इमीडिएट में आता है वो जस्ट आफ्टर सर्जरी, अर्ली विद इन आवर्स, एंड लेट days after surgery. ठीक. अच्छा, it may be caused by an arterial or venous leak, but also by a generalized ooze or coagulopathy. Slow bleeds may go undetected and then patient suddenly decompensate. ऐसा होता है. Patient की dressing apply हुई भी है and that is not soaked and he is bleeding internally and you say जी सब कुछ ठीक है, लेकिन you just start seeing on the monitor that BP is going low, pulse is going high. And then this is alarming that you should see his wound dressing, his drains, कि कहीं से blood loss कर रहा है और फिर suddenly decompensate करता है. ठीक है. तो इस पे ध्यान रखना है. पेशेंट्स को देखना, वाइटल साइंस के देखने. ठीक है. यूरिन आउटपुट, एक चीज याद रखना, जिंदगी भर काम आएगी. द बेस्ट इंडिकेटर फॉर द बॉडी परफ्यूजन इज यूरिन आउटपुट. अगर एक पेशेंट अच्छा यूरिन आउटपुट बना रहा है, मींस ही इज प्रॉपर्ली परफ्यूज्ड, ही हैज नॉट लॉस्ट ब्लड एनीवे. ब्लड ही तो मीडियम है ना जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, जो परफ्यूजन दे. ड्रेसिंग्स एंड ड्रेन्स शुड बी इंस्पेक्टेड रेगुलरली इन द फर्स्ट 24 आवर्स, जो कि मैंने आपको भी बताया. हेमरेज अगर लग रहा है तो ब्लड सैंपल्स आप भेजेंगे, ब्लड काउंट, कोएगुलेशन के लिए, क्रॉस मैच के लिए, और फिर ब्लड अरेंज भी करवा के रखें. लार्ज बोर कैन्युला का क्या फायदा है? यू कैन डू अ रैपिड फ्लूइड रिससिटेशन अकॉर्डिंग टू द नीड. ठीक. The treatment of hemorrhage is both to stop the bleeding and supportive treatment. Supportive includes oxygen and fluid resuscitation. It may require collection of coagulopathy or patients will require close observation. Here DVT and PE. Deep venous thrombosis is a well-known complication और इसके साथ कभी कभार PE भी हो जाता है. बेसिकली पहले deep venous thrombosis होता है, फिर वो venous thromboembolism होता है, यानी जो क्लॉट बना हुआ होता है वो वेन्स के थ्रू वेना केवा में जाता है, वेना केवा से राइट एट्रियम में जाता है, वहां से पल्मोनरी आर्टरी के जरिए लंग्स में जाता है. तो दैट कॉजेस पल्मोनरी एम्बोलिज्म एंड दीस टू आर फेटल कॉम्प्लिकेशन. डीवीटी के पेशेंट दे कैन सर्वाइव विद द मेडिकेशन एंड रेस्ट, बट PE is a high mortality condition. The symptoms and signs of DVT include cough pain, swelling, warm, redness and engulfed veins. लेकिन ज्यादातर फिजिकल साइंस नहीं मिलते. काफ में थोड़ा सा बस पेन और टेंडरनेस मिलती है. द हॉफमैन साइन, ये हॉफमैन साइन एग्जाम में पूछा जाता है. व्हेन यू आस्क द पेशेंट डॉर्सीफ्लेक्स द फुट, पेशेंट हैज टेंडरनेस इन द काफ. ठीक है, या काफ पेन. अच्छा, इसके लिए इन्वेस्टिगेशन क्या होती है? डुप्लेक्स डॉपलर अल्ट्रासाउंड. इट विल शो नॉन कंप्रेसिबल वेन विद अ क्लॉट इनसाइड द वेन. ठीक है, डीप वेनस सिस्टम. ये इसकी फाइंडिंग्स होती हैं डॉपलर अल्ट्रासाउंड पे. डी डायमंड लेवल्स जो कि ब्लड में से आप लेते हैं सैंपल, वो बढ़े हुए मिलते हैं. ट्रीटमेंट आप सबसे पहले क्या करते हैं? पहले जमाने में पेरेंटल एंटीकोगुलेशन देते थे. आजकल हम सब क्रिटिनिस लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन देते हैं बिकॉज ऑफ द सेफ्टी, मोर इंक्रीज सेफ्टी प्रोफाइल. उसके साइड इफेक्ट्स कम है, पेशेंट एक्सेप्टेंस ज्यादा है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, ये सारी चीजें. और फिर जब पेशेंट इम्प्रूव कर जाता है तो आप ओरल वार्फरिन पे डाल देते हैं. अच्छा, व्हेन यू वांट टू प्रिवेंट द pulmonary embolism after DVT, you insert an IVC filter. inferior vena cava में फिल्टर डाल देते हैं. शटलकॉक की शटल होती है ना, उस टाइप की चीज होती है, वो एक्सरे पे वैसी ही नजर आती है. दैट बेसिकली स्टॉप्स द क्लॉट फ्रॉम गोइंग टू द राइट एट्रियम. तो वो IVC फिल्टर कहलाता है. ठीक है. अगर गूगल पे आप तस्वीरें देखेंगे एक्सरेज में, आपको नजर आ जाएगा IVC फिल्टर.
अच्छा, पीई पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है। मैंने बताया ना कि लेग की और पेल्विस की वेन से बिना क्या हुआ वहां से राइट एट्रियम, वहां से फिर वो लंग्स में पीई करवाता है। साइंस एंड सिम्टम्स वही है जो लंग के किसी भी कंडीशन में हो सकते हैं, डिस्निया, कॉफ, प्लूराइटिक चेस्ट पेन, कभी कभार हेमोप्टाइसिस भी होता है, ठीक है। अच्छा, डायग्नोसिस ऑफ पी बिगिंस विद हिस्ट्री। पेशेंट की कोई रीसेंट सर्जरी, रिस्क फैक्टर था, कैंसर था, मॉरिबंड पेशेंट था, बेड बाउंड था, ट्रॉमा हुआ था सिवियर, 3-4 बोन्स फ्रैक्चर हो गई थी पेल्विस की, तो ये सब करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और पहले डीवीटी हुआ हो पेशेंट को, ठीक। इन्वेस्टिगेशंस डिपेंडिंग ऑन प्रेजेंटेशन, ईसीजी में कुछ पी वेव में चेंजेस मिलते हैं, चेस्ट रेडियोग्राफ में आपको हेजीनेस मिलती है, एबीजीज में आपको पीएच डिरेंज मिलता है, और सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी, सीटीपीए इज द गोल्ड स्टैंडर्ड, ठीक है, वो आपको सबसे बेस्ट बताते हैं। अच्छा, थ्रोम्बोलाइसिस कर सकते हैं इसमें, लेकिन इसकी प्रोग्नोसिस इतनी अच्छी नहीं होती। अच्छा, पेशेंट में नीड आइनोट्रोप्स। आइनोट्रोप्स क्या होते हैं? जो आर्टिफिशियली हार्ट को पंप करवाते हैं। पेशेंट को आपने आईसीयू केयर में लेना है, ऑक्सीजन देनी है, प्रॉप अप करना है, सपोर्टिव केयर देनी है, ठीक है, एनाल्जेसिया देना है, पेशेंट रिकवर कर सकता है विद एंटीकोगुलेशन, ठीक। 40% ऑफ पेशेंट डेवलप, अच्छा, पायरेक्सिया, ये फीवर था, इसकी पर मैंने हेडिंग नहीं डाली। अच्छा होता ये 40% ऑफ पेशेंट्स में फीवर हो जाता है आफ्टर मेजर सर्जरी। इसकी कोई कॉज नहीं होती, दैट इज अ नॉर्मल इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू द सर्जिकल ट्रॉमा। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि सर्जरीज आर ट्रॉमा टू बॉडी, फीवर इज अ रिस्पॉन्स टू दैट ट्रॉमा। तो अगर बिल्कुल अर्ली पोस्ट ऑफ पीरियड में फीवर है, जस्ट आफ्टर सर्जरी पेशेंट वार्ड में आया हुआ है फर्स्ट 24 आवर्स में, so you should know that this can be a normal response to trauma, ठीक है। उसमें आपको पेशेंट को सब पैरासीटामोल देनी है, अच्छा हाइड्रेट करना है, अच्छी न्यूट्रिशन देनी है, इट विल सेट, ठीक है। ठीक है, तो फर्स्ट 24 आवर्स में क्या क्या हो गया? एक तो रिस्पॉन्स टू ट्रॉमा हो गया, आगे नीचे आ रहा है टेलेक्टेसिस ऑफ लंग, सुपरफिशियल एंड डीप वुंड इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन, यूटीआई, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, बोन इन्फेक्शन, एनास्टोमोटिक लीकेज, ये सब कॉजेज है। लेकिन फर्स्ट 24 आवर्स में रिस्पॉन्स टू ट्रॉमा एंड टेलेक्टेसिस ऑफ लंग। उसके बाद जो है ना विंड आता है, यानी कि चेस्ट, वूंड एंड वाटर, ये 3 W's होते हैं। तो विंड चेस्ट हो गया, सेकेंड यानी कि पोस्ट ऑफ डे से लेके 5th पोस्ट ऑफ डे तक, वूंड इन्फेक्शन एंड वाटर, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो विंड में चेस्ट आ गया, वूंड में वूंड इन्फेक्शन और थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस एंड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है। तो एनास्टोमोटिक लीकेज जो डीप वूंड डेहिसेंस जो होती है वो आफ्टर 7 days होती है। पॉसिबल कॉज ऑफ पायरेक्सिया जो है वो क्या क्या हो सकता है? ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो गया, वूंड में हेमाटोमा बन गया, ड्रग रिएक्शन हो गया, ठीक है। और इसमें आपने रिलेवेंट इन्वेस्टिगेशन करानी है। अगर फर्स्ट 24 आवर्स में पेशेंट का फीवर सेटल नहीं हो रहा, यू विल सेंड ब्लड, फुल ब्लड काउंट, यूरिन कल्चर, ब्लड कल्चर्स, चेस्ट एक्सरे, यूरिन स्प्यूटम माइक्रोस्कोप, ठीक। अच्छा, अब जर्नल पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट कॉम्प्लिकेशंस हमने डिस्कस कर ली, 4-5 यही होती। जर्नल पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट में क्या होगा? रिकवरी से पेशेंट आ गया ना, तो सबसे पहले आपने उसको पोस्ट ऑफ नोजिया वॉमिटिंग को मैनेज करना। इज अनप्लेजेंट फॉर पेशेंट, जब तक एनेस्थेटिक ड्रग्स का इफेक्ट होता है पेशेंट हैव नोजिया एंड वॉमिटिंग, ठीक है। It can lead to more serious complication like aspiration pneumonia, और बार बार नोजिया वॉमिटिंग से एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है तो वुंड डेहिसेंस भी होने के चांसेस होते हैं। या कभी कभार अंदर कोई ब्लीडिंग थी और वो स्टॉप हो गई, क्लॉट बन गया, वो वॉमिट किया, प्रेशर बढ़ा तो वो ब्लीडिंग दोबारा से हो सकती है, ठीक है। रेज्ड आईसीपी भी होता है उसकी वजह से। अच्छा, फीमेल्स में नेचुरली ज्यादा वॉमिटिंग होती है, बाकी जिनको मोशन सिकनेस हो, माइग्रेन हो, इन सब में ज्यादा होती है। तो क्या होता है कि ये जो आप एनेस्थेटिक एजेंट्स है यूजुअली ये करवाते हैं। ट्रीटमेंट आप क्या देते हैं? पेन को रिलीव करना है, एंजाइटी, उसको हाइड्रेट अच्छा करना है, एंटी एमेटिक्स दे देंगे। एंटी एमेटिक्स यूजुअली आप शुरू में पैरेंटली देते हैं, मेटाक्लोन, मेटाक्लोप्रामाइड। उससे सही ना हो तो H3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जैसे कि ऑन्डेंसेट्रॉन देते हैं। सेटल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ओरली रिज्यूम करना होता है। हाइपोथर्मिया मैंने पहले भी बताया था, प्रिवेंट करना होता है, ठीक है। उससे थर्मोरेगुलेटरी कंट्रोल जो है एनेस्थीसिया की वजह से वो डिरेंज हो जाता है। तो स्किन और ऑर्गन्स भी क्योंकि एटमॉस्फेयर से एक्सपोज हो रहे हैं ड्यूरिंग सर्जरी, तो दैट इज आल्सो एड टू द कूलिंग ऑफ द बॉडी। एंटीसेप्टिक स्किन प्रिपरेशन भी कूल होती है, वो भी यही करवाती है। तो यू हैव टू इंक्रीज द टेम्परेचर। टेम्परेचर थिएटर का ज्यादातर आप 21 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखते हैं, इससे ज्यादा नहीं रखते हैं, इससे कम रखते हैं, ठीक है। एक्टिव वार्मिंग डिवाइसेस जैसे कि बेयर हगर है वो यूज करते हैं ड्यूरिंग सर्जरी। आफ्टर सर्जरी आप पेशेंट को ब्लैंकेट्स दे सकते हैं वार्म,
वॉर्म फ्लूइड्स देने, ठीक है। ड्रेन्स मैंने क्या बताया, हम पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया वॉमिटिंग की जनरल मैनेजमेंट करते हैं, हाइपोथर्मिया की करते हैं। ड्रेन्स ज्यादातर एब्डोमिनल सर्जरीज और थायराइड सर्जरीज, ब्रेस्ट सर्जरीज में हम ड्रेन्स रखते हैं, ठीक है। ड्रेन्स का पर्पस क्या है, दे यूज टू प्रिवेंट एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड इनसाइड द वुंड, ठीक है, क्योंकि अगर वो ब्लड एक्यूमुलेट होगा या सीरोसिंगोनस फ्लूइड कलेक्ट होगा, that will lead to your wound infection, the formation of pus inside, and अगर एब्डोमेन में आपने कोई एनास्टोमोसिस बनाया बाउल का, तो वो लीक हो सकता है प्रेशर की वजह से, ठीक है। अच्छा ड्रेन का एक और फायदा क्या होता है, अगर आपने पैंक्रियाटिक सर्जरी की है या गॉल ब्लैडर की सर्जरी वहां रखा हुआ है, तो आप क्या क्या देख सकते हैं, पैंक्रियाटिक फ्लूइड आ रहा है, इसका मतलब पैंक्रियाटिक एनास्टोमोटिक लीकेज है। गैस्ट्रोजिजोनोस्टोमी बनाई है, वहां से ग्रीनिश लीक आ रहा है, तो मतलब बाइल लीकेज है, या रेड है तो ब्लीडिंग हो रही है। तो ये आपको देखने के लिए, असेस करने के लिए भी काम है। Drain should be removed as soon as possible, and certainly once the drainage has stopped or become less than 25 ml, less than 25 ml पर निकाल दे। वुंड केयर क्या हो, फर्स्ट 24 आवर्स में आप इलेक्टिव सर्जरी के स्टेराइल ड्रेसिंग नहीं हटाते, क्योंकि इसके एजेस व्हिच यू हैव ओपन, यू हैव कट, they come closer because of the epithelialization of the wound in first 48 hours. Inflammation होती है, वहाँ सेल्स आके लगते हैं आपस में, they come closer, तो वो जो है epithelialization होती है। अगर आप उससे पहले वो हटा देंगे तो epithelialization का स्टेप खत्म हो जाएगा, and that can cause wound infection, ठीक है। अगर आपको लग रहा है wound inflamed है या wound में से पस आ रही है ड्यूरिंग द अर्ली पीरियड, तब तो आप हटाएंगे, लेकिन क्लीन ड्रेसिंग को कभी नहीं हटाएंगे। 48 आवर्स के बाद यू आस्क पेशेंट टू रिमूव द ड्रेसिंग, हैव अ बाथ, wash the suture, the stitch area, the surgical area, and then apply a dry dressing, ठीक है। अगर वुंड इन्फ्लेम लग रहा है तो स्वाब लेंगे, आप उसको भेजेंगे कल्चर्स के लिए। इन्फेक्टेड वुंड है तो आप उसको ड्रेन करेंगे, उसका कल्चर भेजकर एंटीबायोटिक्स शुरू करेंगे। स्किन सूचर्स और स्टेपल्स यूजुअली वो रिमूव अराउंड 10 to 14 days, इसमें 6 to 10 लिखा हुआ, ठीक है। अच्छा, जो मैंने पहले भी बताया था, जो मेलनरिश्ड है, इनमें विटामिन ए सी की कमी है। एक और चीज जिंक भी आजकल बहुत उसका चर्चा हो रहा है। वुंड हीलिंग इज डिलेड इन दोस पेशेंट्स। स्टीरॉइड्स जो हम लेते हैं वो क्योंकि कोलेजन को थिन आउट करवाते हैं, तो दे आल्सो लीड टू डिलेइंग वुंड हीलिंग, सही। डायबिटीज की वजह से भी वुंड हीलिंग डिले होती है। अच्छा, अब आगे इरास प्रोटोकॉल। इरास स्टैंड्स फॉर एनहांस्ड रिकवरी आफ्टर सर्जरी, ठीक है, एनहांस्ड रिकवरी आफ्टर सर्जरी। इट इज एन अप्रोच, आजकल इसका बहुत हो रहा है, उस पर काम भी बहुत हो रहा है। वी यूजुअली फॉलो दिस इन आवर दिस प्रोटोकॉल इन आवर ward sites. Enhanced recovery is an approach to perioperative care of patients undergoing surgery. It is designed to speed the clinical recovery of patients. उसकी वजह से cost effectiveness भी होती है और hospital stay भी कम हो जाता है। इसमें क्या करते हैं, you optimize the health of patient before surgery, ठीक है ना, जो कि पीछे हमने चीजें की किस तरह improve करें, so that you get the best results after surgery, ठीक। क्या करते हैं इसमें हम लोग कि अर्ली मोबिलाइजेशन, यानी पेशेंट जैसे फर्स्ट करो ब्रेस्ट की सर्जरी करवा के, थायराइड की सर्जरी करवा के, मोइनल हर्निया है, पेरिनल सर्जरीज हैं, इन द इवनिंग यू आस्क देम टू गेट अप, मूव द लिम्स आउट ऑफ द बेड, एंड देन आस्ते आस्ते उठ के सहारे से, एंड देन फिर अपना फंक्शन स्टेटस गेन कर। इवन विद एब्डोमिनल सर्जरीज एंड कैंसर सर्जरीज वी आस्क द सेम डे ऑफ द इवनिंग, अगर वो आईसीयू में अगर अनकॉन्शियस नहीं है, कॉन्शियस गेन कर लिया, एक्सटुबेट हो गए, तब उन्हें मोबिलाइज करना। अर्ली ओरल हाइड्रेशन एंड नरिशमेंट, जैसे कि मैंने बताया कि अर्ली एंटरल रूट को यूज करने के बहुत सारे फायदे हैं, जो हमने डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस किए, ठीक है। थर्डली वी यूज ओपियोइड स्पेयरिंग एनाल्जेसिक, क्योंकि ओपियोइड्स जो होते हैं वो एक तो सेडेशन बहुत करवाते हैं, रेस्पिरेटरी ब्लॉकेट करवाते हैं, नोजिया वॉमिटिंग करवाते हैं। To stop the opioid analgesia like morphine, tramadol, and you start using NSAIDs like paracetamol and ketorolac, ठीक है, diclofenac. Discharge planning is started before the patient is admitted. मैंने बताया जब हम written informed consent लेते हैं, in that time we anticipate कि हम patient को कब discharge करेंगे in case of elective surgeries, ठीक है। अच्छा, उसमें फिर हम ये भी होता है कि हम फिजियोथेरेपिस्ट से हेल्प लेंगे, स्टोमा केयर नर्सेज, जैसे एलियोस्टोमी बनी तो उनको पहले से हम कॉल करेंगे, टेल देम, टीच देम हाउ टू टेक केयर ऑफ द स्टोमा। Early mobilization is encouraged to reduce the risk of DVT, urinary retention, atelectasis, pressure sores, and fecal infection. That is all from my side. Any questions? Any questions, please?
लेक्चर इज फिनिश्ड. हैप्पी न्यूज फॉर यू. अगर कुछ पूछना चाहें तो पूछ लें. सही है, ठीक है. थैंक यू फ्रॉम माय साइड. सी यू इंशाल्लाह.